ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक? हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है तो उड़ने के काबिल नहीं। सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी उड़ान बाकी है। Respected Director Principal Sir, Vice Principal Ma'am, Coordinator Ma'am, and dear parents, Pranam to all. I warm welcome to one and all present over here. It is indeed an honor for me standing here to welcome all of you to this much awaited day, a special celebration of talent, creativity and expression. Abhivakti, I Hemang, along with my co-host Avikar, would like to welcome all of you on behalf of Sucheta Memorial School on this Abhivakti program. It's our honor that today our lovely parents are gathered here to showcase the hidden talent of our students. Our school, Sucheta Memorial School, is not just a place to study. It is a temple of learning where values are nurtured, dreams are built, and futures are shaped. Yes, indeed. It is not made of bricks and walls, but of dedication, love, and endless possibilities. It is truly our second home, our pride. And today, through this program, Abhivakti 2025, we celebrate the spirit of our school, a place where every child gets the freedom to express, create, and shine. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। To mark the auspicious beginning of today's program, we shall now proceed with the cherished tradition, the lighting of the lamp, as a tribute to Ma Saraswati, the goddess of knowledge and wisdom. For this, I would like to invite our Honorable Director Principal Sir, Vice Principal Ma'am, Coordinator Ma'am to kindle the lamp. All of you are requested to join your hands. या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवः सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगत्प्रापिणी वीणा पुस्तकधारिणी मभयता हस्ते साटिकमालिका निगदति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदा शारदा To begin with, what better way than the language of rhythm and movement, dance? Dance is not just about steps. It is the hidden language of the soul and expressions that needs no word. Yes, indeed. Every program becomes more graceful,
Then it begins with a dance of welcome offered with love, respect, and warmth. So everyone, put your hands together and welcome our talented performers on stage with a huge round of applause. अथ स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतं आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् नित्यनिरन्तर दानवता मानवता समता ममता सारथि साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं दमता संकल्प अविजित अभिमतम् संकल्प अविजित अभिमतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् कुसुमित नई कामनाएं सुरभित नई साधनाएं कुसुमित नई कामनाएं सुरभित नई साधनाएं मैत्री मति क्रीड़ांगण में प्रमुदित बंधु भावनाएं मैत्री मति क्रीड़ांगण में प्रमुदित बंधु भावनाएं शाश्वत सुविकसित इति शुभम् शाश्वत सुविकसित इति शुभम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् Wow, what a wonderful performance! Let's clap not just with our hands, but with our hearts. Laughter is the best therapy, and what better way to bring smile than through a touch of humor? Yes, a little comedy not only entertains us but also makes every moment lighter, happier, and unforgettable. So, are you ready to tickle your funny bones as your talented performers present a hilarious skit that will surely leave you laughing out loud? Let's welcome them on stage with cheerful applause because laughter shades together is joy multiplied. एक था लड़का नाम था उसका बिरजू वह दिल का बहुत अच्छा था
क्या माँ, सोने भी दो ना। कितने अच्छे सपने देख रहा था। पता है, सपने में मैं अच्छे अच्छे पकवान खा रहा था। क्या खा रहा था? जरा मुझे भी तो बता। जलेबी, लड्डू, पकौड़े और भी बहुत कुछ। सारा दिन तो बस सपने ही देखता रहता है। कुछ काम भी कर लिया कर, फिर मेरा हाथ ही बटा दे। काम काम करता तो हूँ, सारा दिन काम ही तो करता हूँ। क्या काम करता है? जरा मुझे भी तो बता। खाता हूँ, सोता हूँ, बैठता हूँ। अरे हाँ, खेलता भी तो हूँ। कितना थक जाता हूँ इतना काम करके। भला ये कोई काम है? अब तू तो करेगा नहीं, अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। बिरजू की माँ काम करने से परेशान नहीं होती थी। उनकी असली परेशानी थी उनके बेटे की बेवकूफी वाली बातें। माँ काम करने निकल जाती है। सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। गांव वालों, सब्जी ले लो, ले लो। अरे बहन, तुम काम क्यों करती हो? तुम्हारा बेटा तो बड़ा हो गया है, वो काम नहीं करता क्या? क्या तुम इनके बेटे को नहीं जानते हो? इनका इनका कौन बेटा? बिरजू। कौन बिरजू? जो उसे चिल्ली की तरह सपने देखता रहता है। अच्छा, याद आया। जो सोता है, खाता है, सपने देखता है। हाँ, वही बिरजू। नहीं नहीं, मेरा बेटा बुद्धू नहीं है, थोड़ा नादान है, जल्दी ही सीख जाएगा। चलो देखते हैं। माँ घर वापस आ रही है। अरे बिरजू, तू तो अब तक सो रहा है। मैं तो सब्जी बेच भी आई हूँ। उठ और मेरे कामों में मदद कर। घर आकर माँ कपड़े समेटने लगी। कपड़े समेटते हुए अचानक एक लाल कपड़ा बिरजू पर गिर गया। बस फिर क्या था, चलो देखते हैं। अरे लाल रंग का कपड़ा! आ आ माँ, मैं मर गया। क्या हो गया? माँ देखो, ये लाल रंग का कपड़ा कहाँ से मुझ पर गिर गया। अब तो मैं मर जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तू क्यों डर रहा है? नहीं माँ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। क्या हो गया? बता तो सही, तू इतना क्यों डर रहा है? मैंने सपने में देखा था कि अगर मुझ पर लाल रंग का कपड़ा गिर गया तो मैं मर जाऊंगा। माँ ने बहुत समझाया, पर वह कहाँ समझने वाला था। वह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि वह जिंदा है। तू एक काम कर, तू वैद्य जी के पास जा, वो तेरे को दवाई देंगे और तू ठीक हो जाएगा और फिर से जिंदा भी हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। बिरजू की समझ में ये बात आ गई। वह पास वाले गांव में वैद्य जी के पास गया। हाय हाय वैद्य जी, मैं मर गया, मैं मर गया। वैद्य जी, आप कहाँ हो? जल्दी से आओ। कौन है, कौन है? वैद्य जी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कहो, क्या परेशानी है तुम्हें? मुझ पर लाल कपड़ा गिर गया है, इसीलिए मैं मर गया हूँ। मेरी माँ ने मुझे आपके पास दवाई लेने भेजा है ताकि मैं जिंदा हो जाऊं। अरे तुम मरे नहीं हो, तुम तो जिंदा हो। कौन कहता है कि तुम मर गए हो? वैद्य जी ने बिरजू को बहुत समझाया, पर बिरजू समझने का हवाला था।
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जी वैद्य जी, मैं आपका हर उपाय मानने को तैयार हूँ। तुम 2 दिन तक खिचड़ी खाते रहना, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है वैद्य जी। कहीं तुम खिचड़ी का नाम भूल ना जाओ, इसीलिए रास्ते पर खिचड़ी खिचड़ी बोलते जाना। ठीक है। बिरजू अपने घर की ओर चल दिया। भूल जाने के डर से वह खिचड़ी खिचड़ी रटता गया। खिचड़ी 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 खिचड़ी। अरे कितनी सारी चिड़िया हैं, ये तो बहुत सुंदर हैं। बिरजू चिड़िया को देखकर इतना खुश हुआ कि वह चिड़ी का नाम भूल गया। कितनी सारी चिड़िया हैं, चिड़िया 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 चिड़िया। अरे ये मैं क्या बोलने लगा, मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं, क्या बताया था वैद्य जी ने। खा खी खा चिड़िया खा खी खा। अरे हाँ, याद आ गया, खा चिड़ी, यही तो बताया था वैद्य जी ने, यही तो मेरे को घर जाके खानी है। खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। बिरजू गेहूं के खेत में पहुंच गया। वहाँ किसान चिड़ियों को उड़ा रहा था। चलिए देखते हैं क्या होता है। खा चिड़ी 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 खा चिड़ी। ये तुम क्या बोल रहे हो? चिड़िया फसल खा रही है, मैं उन्हें उड़ा रहा हूँ और तुम कह रहे हो खा चिड़ी खा चिड़ी। तुम चाहते हो कि जो चिड़िया हमारी फसल खा जाए? नहीं नहीं, खबरदार, जो तुमने अब खा चिड़ी कहा, तुम बोलो उड़ चिड़ी, ऐसे चिड़िया उड़ जाएगी और हमारी फसल को भी नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। बिरजू उनके गुस्से से इधर डर गया कि वह रास्ते पर उड़ चिड़ी बोलता गया। उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। बिरजू अब थोड़ी आगे चला, वहाँ उसे एक शिकारी मिला जिसने पक्षियों का जाल बिछा रखा था। देखते हैं आगे क्या होता है। उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। ये लड़के क्या बोल रहे हो तुम? उड़चिड़ कह के तुमने सारी चिड़िया उड़ा दी। खबरदार, जो चिड़िया को उड़चिड़ कहा, उड़चिड़ की जगह बोलो आते जाओ फंसते जाओ। अच्छा ठीक है, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ। अब बेचारा बिरजू खिचड़ी का नाम तो बिल्कुल ही भूल चुका था। अब वह कहने लगा आते जाओ फंसते जाओ। आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते बिरजू यह बोलते हुए अभी थोड़ी ही दूर चला था कि उसने देखा कुछ चोर चोरी करके छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। आते जाओ। ये कौन है? ये तो हमें फंसाना चाहता है। ए लड़के, इधर आओ। ये क्या बोल रहे हो तुम हमें फंसाना चाहते हो? हम तो सिपाहियों से बचना चाहते हैं, तुम कह रहे आते जाओ फंसते जाओ। खबरदार, ये बोला तो तुम बोलो आते जाओ निकलते जाओ, आते जाओ निकलते जाओ। हाँ हाँ ठीक है, आप जो कहोगे मैं वो कहूँगा। आते जाओ, जाते जाओ निकलते जाओ, जाते जाओ निकलते जाओ। बिरजू जाते जाओ निकलते जाओ बोलते हुए एक पंडाल में पहुंचा जहां गणेश उत्सव की तैयारियां हो रही थी। आइए देखते आगे क्या होता है। जाते जाओ निकलते जाओ, जाते जाओ निकलते जाओ।
जाते जाओ निकलते जाओ, जाते जाओ निकलते जाओ। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि तुम कौन हो? मेरे गणेश जी के पास यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन बोल रहा है? क्या भगवान मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ। कौन मैं? कहाँ हो तुम? अरे यहाँ देखो, यहाँ। कहाँ? मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अरे नीचे देखो, नीचे। कहाँ नीचे? अरे यहाँ नीचे। मैं मूषक भगवान गणेश का वाहन। अरे मूषक, तुम बोलते भी हो? मैंने तो तुम्हें कभी बोलते हुए नहीं देखा। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं उन्हें ही मेरी आवाज सुनाई देती है। बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? मैं बहुत परेशान हूँ। लोग मुझे बुद्धू समझते हैं। कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। सब मेरा मजाक बनाते हैं। मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम बहुत ही भले इंसान हो। बस तुम्हें मेहनत की राह पर चलना है। मेहनत करने से सारी मुश्किल दूर हो जाती है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करूँगा। अब तुम सीधा अपने घर अपनी माँ के पास जाओ। वो तुम्हारी चिंता कर रही हैं। ठीक है मूषक। बिरजू चुपचाप अपने घर पहुंच गया। जहाँ उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। माँ, कहाँ हो माँ? देखो, मैं घर आ गया। आगे बेटा, तुम क्या कहा वैद्य जी ने? क्या दवा दी है उन्होंने? कुछ कहा तो था पर मैं भूल गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, याद करने की कोशिश करो, याद आ जाएगा। ठीक है माँ। तुम्हें भूख लगी होगी। लगी तो है माँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने का बना के लाती हूँ। क्या लाऊं क्या लाऊं? तुम ही बता दो तुम्हें क्या खाना है। कुछ भी बना दो माँ। खिचड़ी बनाती हूँ। अरे खिचड़ी, याद आ गया। हाँ, यही तो बताया था वैद्य जी ने। यही खाने के लिए कहा था। चलो माँ, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अब से मैं भी काम करने जाऊंगा और खूब मेहनत करूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा माँ। अब मुझे समझ आ गया है कि हमें मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए। शाबाश मेरे बच्चे, जीते रहो। तो देखा आपने, हमारी कहानी का बेजू मेहनत सीख गया। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में खूब मेहनत करनी चाहिए।
मेहनत करने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। और मजेदार प्रस्तुति थी। सच में हंसी से बढ़कर कोई दवा नहीं होती और हमारे कलाकारों ने पूरी मंच को ठहाकों से गूंजा दिया। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। कोई दवा नहीं होती और हमारे कलाकारों ने पूरी मंच को ठहाकों से गूंजा दिया। हंसी से रोशन हो गया ये समा, लग रहा है जैसे खिल उठा हो गुलिस्तान। नटखट अंदाज और मस्ती भरी चाल हमारे कलाकारों ने कर दिया सबका दिल खुशहाल। Now I would like to hand over the mic to Preeti ma'am. Now let us welcome the man who doesn't need any introduction and none among all of us for his wisdom and knowledge. He is a man of simplicity and inspiration, a visionary leader who has guided our school to new heights of excellence. He is none other than our honorable and dignified director principal sir. Please put your hand together and welcome with a huge round of applause. Thank you, Himal and Avikar, isn't it? Honorable Chairman, Sir of the school, respected Executive Director, Ma'am, Vice Principal, Ma'am, Coordinator, Ma'am, worthy teachers, respectable parents and lovely students. Indeed, it had been a great fun and learning while witnessing this marvelous show, Birju Ki Khichdi. And in fact, when we were witnessing this student-oriented event, it really reminded us that we were also in childhood. और ये जो बचपन की यादें होती हैं और बच्चों का खासकर भोलेपन में और एक नटखटपन में पूरा भी अपने आप को अभिव्यक्त करना, यही अभिव्यक्ति का पर्पस है। और सब बच्चों ने बड़े अच्छे से लगा। अच्छा लगा आपको? और प्रदर्शन करने वालों ने भी बड़ा नेचुरल रखा और यही पर्पस है, अभिव्यक्ति में सबको अपने आप को अभिव्यक्त करना। एंड स्कूल बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. So in tandem with this philosophy, we give opportunity to each and every child to express. And all the students were involved in one way or the another way. And naturally, the lesson was very clear that no matter what, if we want to excel in our life, we have to work hard. है ना? सबने देखा ना?
सबको क्या करनी है? वर्क हार्ड, मेहनत करनी है, ठीक है ना। इसलिए संस्कृत में कहा भी गया, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, एक कार्य को सिद्ध करने के लिए क्या करना है? उद्यम करना है, मेहनत करनी है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी, कि सिर्फ मन में सोच लेने से कार्य सिद्ध नहीं होता। बिरजू भी यही था ना, सब कहते थे सोचता बहुत है, सपनों में रहता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब सिंह सोचे कि अरे मेरे मुंह में तो मृग आ जाएगा, हिरन आ जाएगा अपने आप मुंह खोल के, अगर वो बैठेगा तो नहीं, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत ही अच्छा बच्चों ने सरल ढंग से इसको प्रदर्शन किया, और जीवन में भी ऐसे ही आएगा। जब एक बच्चा करता है फिर सोचने का भी उसको मौका मिलता है। आप सब बच्चों ने ध्यान से देखा ना, थोड़ा और ध्यान से आगे वाले बैठेंगे, सीधे बैठेंगे। सो मेहनत सबसे बड़ा एक गुण है। हार्ड वर्क इज द ओनली वे टू गेट द सक्सेस। मेहनत करो, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। अब क्लास 3rd के भी यहाँ बच्चे बैठे हैं, 2nd के भी बैठे हैं। कोई मैथ्स में अगर आपको लगता है करते रहो, जरूर उसका सॉल्यूशन निकलेगा। सो हार्ड वर्क इज द ओनली वे टू सक्सेस। और कितनी मजेदार बीच में चीजें आई। खिचड़ी, खिचड़ी से अगला शब्द क्या हुआ उसने उसको बोलने में आया? आचड़ी। फिर खाचड़ी का क्या बना? उड़चड़ी। तो आप भी अपने घर में कुछ कुछ ऐसे शब्द जब टाइम मिले करते रहो। इसी को कहते हैं टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर कहते हैं ना। अब टंग ट्विस्टर कुछ भी बन सकता है। कहते हैं ना कि कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, ये बोला करो। घर में जब समय मिले इस तरह की चीजें किया करो, और नई नई चीजें ढूंढो। आपने भी इसमें लास्ट में पहेलियां भी देखी। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स to involve students in such kind of intellectually stimulating tasks. पहले पहेलियां होती थी, बच्चों के दिमाग शार्प रहते थे। अभी भी करिए, कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही होता था और अब नहीं कर सकते। तो ये जो डिवाइस है ना, डिवाइस से दूर और इन सब चीजों में एंगेज करिए। और जितना बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज में रहेंगे, टंग ट्विस्टर्स, पहेलियां, कुछ ना कुछ जोक्स भी सुनिए इनके, चुटकुले अपने भी बनाए। बच्चे का एक अलग ही ट्रैक होता है। बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त करता जाएगा और उसके अपने आप एक व्यक्तित्व बनता जाएगा। So perhaps to a large extent, the message of this Birju ki Khichdi had been very vivid and very clear, and one must think over it. ठीक है, आप सब इसके ऊपर सोचना। और सबने आज से क्या एक शब्द सीखा? एक क्या नई बात सीखी? खिचड़ी तो बहुतों को पता होगा, कईयों को नहीं भी पता होगा। ठीक है, आप सब खिचड़ी भी खाया करो। कि हमें सबको क्या करनी है? मेहनत करनी। नाउ आई वुड लाइक टू कन्वे माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू बोथ द टीचर्स ऑफ क्लास 3rd, Mrs. Preeti Chhabra and Mrs. Shruti Arora, for putting such hard efforts, and the credit goes to students as well who naturally express themselves. And perhaps to a large extent, it's all student oriented. All the costumes, all the props, everything was home, school centered. They all created over here. We never ever depend upon some outside agencies for any kind of costumes and any kind of props. And that is the real purpose. And I am thankful to all the parents who spared their valuable time while coming over here on this Friday working day. And I am hopeful that in future also you will be engaged with the school, and your regular arrival in the school, that itself encourages the students. So in future also I expect your this much cooperation with the teachers and with the school itself. And lastly, I would like to convey my heartfelt thanks to Mrs. Ritu Kataria, the junior school coordinator, for guiding the students and as well as the teachers. And once again, thank you all. May God bless you. Thank you.
Thank you, sir, for sharing your insights with us. For your words have inspired us, and we are grateful for your continued support and guidance. Every successful program needs proper guidance and support. We are truly blessed to have such a dedicated and inspiring coordinator with us. I would like to invite our respected coordinator ma'am to kindly come for vote of thanks. Pranam to all. Thank you, sir, for your motivational words. Your words are truly inspiring for all of us. I extend my heartfelt gratitude to all the parents for presenting here. Your unwavering support is for much valuable to us, as your presence shows how you trust us with your kids. Your sports and involvement, encouragement is the pillar of strength for our students and our school community. I would like to extend my heartfelt gratitude to all the parents who entrust your kids with us for their holistic development. My sincere thanks to class 3 teachers also for their tireless efforts. Without their efforts, it is not possible for the kids, for the success of his Abhivakti and the performance of these kids, class 3 kids is not possible. Thank you very much, Priti ma'am and Shruti ma'am, for their hard efforts. And Hari sir also for technical support, and Ankita ma'am and all the sporting staff who helped them in some other ways. Class 3 students, a big round for them as they did a great job. You performed very well, and the expressions you give, the way you deliver the dialogues is really inspiring to all of us. You are true artist who can perform anything. It's a dance, it's a skit, or it's a dialogue delivery. Whatever you have done is very good, Chris. Once again, I would like to extend my thanks to all of you for the success of this Abhivakti. Pranam. Thank you, ma'am, for the wonderful words of appreciation. Before we conclude, we would like to thank all the parents present here today for your support and जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे